everybody, I'm Devanshi Malviya and welcome to my channel or welcome back. I gave 3 tests which I'll be talking about. SNAP, obviously, where I scored 50 out of 60 in 2023. I scored 99.88 at percentile. Then I gave NMAT, I scored 240. I gave XAT, I got 93.9 percentile. Okay. Now, why this is very important. Okay, wait, before I start this, 2 SNAP tests have already happened. So now, how do you approach the third one? I've received a lot of questions regarding this, and hence I decided that let's make another video. There are 5 to 6 days remaining, and this is a very crucial time. And trust me, you can do it. Like 5 to 6 days means a lot for a SNAP test, and you can actually, change your future for a better college. So this is your time, and obviously watch the video till the end because I will be answering a lot of your questions that I got as Insta DMs, or a few people actually reached on LinkedIn as well, and obviously in YouTube comments. But and very importantly, the point of my video is, if you're wondering कि भाई ये क्यों देखना है, तो I'll tell you. The point of my video is that I give you guys a student point of view, a student POV. There are 10 to 15 institute coaching centers who will tell you all about SNAP, how to my experience here. I tell you about the journey. I tell you about how life will be after you get into a SIBM or SCMHRD or a big school for that matter, and how can you be prepared beforehand, and how can you not make those mistakes that I made. So how do you learn from my experience? Yeah, this is the very important thing that I missed last time. My schedule, my timeline. As I told you, after I gave my cat, उसके बाद जो दिन थे, मैंने तुम्हें मेरा डेली स्केड्यूल बताया था कि मैं कितने घंटे पढ़ती हूँ, क्या होता है. बट तुम्हें ये नहीं बताया था कि हाउ आई स्ट्रैटेजिकली प्लान्ड ऑल माई एग्ज़ाम्स. सो post cat, I decided that I don't want exams with overlapping schedule जिसमें पैटर्न स्विच हो रहे हों. तो आई डोंट वांट दैट, विच मीन्स अगर मैंने स्नैप का एक अटैम्प्ट दिया है, फिर मैं मैट दे रही हूँ, फिर से मैं स्नैप का सेकंड अटैम्प्ट दे रही हूँ, और फिर मैं जैट दे रही हूँ, मेरे को ये सब नहीं चाहिए था. मुझे चाहिए था कि बहुत ही सॉर्टेड रहे, जिसके लिए आई मेड माई स्केड्यूल दिस वे दैट फर्स्ट आई फोकस दैट आई विल गिव एन मैट, get done with it. So I have like 10 to 15 days, and uske baad I have another 10 days for SNAP. So this is how I planned it. CAT 26 November 2023. Post that started studying from like 29 November I think. Had 10 days. Gave NMAT on 10th December 2023. Then post that gave SNAP first attempt on 17th December, which was the second attempt for everybody available. That was my first attempt. Then I gave SNAP 22nd December, third attempt, and the last attempt for everybody, which was my second attempt. So I wanted it this way कि एटलीस्ट मेरे पास 10 दिन, एक हफ्ता हो कि हर एग्ज़ाम के लिए मैं प्रिपेयर कर सकूँ. एंड पोस्ट स्नैप ऑन 22nd December, दैट वॉज ऑन 5th Jan 2025, correct. 2024, sorry. Now I know obviously the attempt ho chuke hai for now, and you can't do that. So in this remaining time, this is how I suggest that you should go about your schedule. Okay. So here it is. Now considering that there are 3 exams, ZAT, NMAT, SNAP. Now considering that you have all 3, I will give you every situation. If you have all 3, abhi ke liye, starting from 14th or 15th December, abhi se, if you have your SNAP on 20th, if you have your NMAT between these days till 19th, and ZAT is going to be on 4th Jan. So for SNAP you have 4 to 5 days, for NMAT you have 0 to 4 days, for ZAT you have 20 days. Abhi ke liye I will say skip ZAT for now, focus on SNAP NMAT. ZAT का तुम 20th के बाद से देखना, जो लोग तीनों एग्जाम्स दे रहे हैं, this is for them. उसमें से how will you manage balance NMAT and SNAP between these 4-5 days? Give one SNAP mock 1 hour, analyze it 30 minutes, 30 to 40 minutes, then 30 to 45 minutes
क्वेश्चंस, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, एडिशनल क्वेश्चंस, ठीक है। इसमें 2.5 आवर्स हो गए। पोस्ट दैट आपने 30-40 मिनट का अगर ब्रेक ले लिया, उसके बाद 2 घंटे का एनमैट का एक मॉक दो। नेक्स्ट 1 घंटे में उसके बाद आप एनमैट के प्रैक्टिस क्वेश्चन सॉल्व करो। नाउ देयर आर 2 वेज। एनमैट बाय GMAC, जो उनका ऑफिशियल बुक है, ये मेरे एक फ्रेंड के पास था, तो मैंने मेरे टाइम पे थोड़ा सा उससे बोरो किया था बुक, और थोड़े बहुत क्वेश्चन से प्रैक्टिस किए थे। अगर आपके पास बुक नहीं है और आपको नहीं खरीदनी है या जो भी रीज़न है, तो आप जो भी फ्री क्वेश्चंस होते हैं वेबसाइट पे, ये वो आप पेड होते हैं, आप वो वाले भी ले सकते हो। मतलब इसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे कि क्वेश्चंस देने चाहिए कि नहीं और क्या करना चाहिए, बट वो भी आप देख सकते हो। तो अनदर 1 आवर फॉर प्रैक्टिस। अभी सुबह के 2.5 आवर्स हो गए, आधा घंटा रेस्ट हो गया, फिर 3 घंटे हो गए, फिर उसके बाद आप फिर से 1 घंटा रेस्ट ले लो, चलेगा। एक स्नैप मॉक दो 1 घंटा, एनालिसिस 30 मिनट्स, 30 to 40 मिनट्स, डन। फिर से आप थोड़ा, आपको रेस्ट लेना है 30 मिनट का, आप ले सकते हो, और फिर 1 घंटा एनमैट के और एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो। दिस शुड बी योर आइडियल शेड्यूल फॉर हूएवर इज गिविंग ऑल द 3। नाउ जिसका एनमैट हो चुका है, जिसको स्नैप और जैट पे फोकस करना है, दिस इज़ अ वेरी सब्जेक्टिव टॉपिक। इट डेफिनेटली डिपेंड्स ऑन द लेवल ऑफ योर प्रिपरेशन। आपका प्रिपरेशन लेवल अच्छा है, आप ऑलरेडी 1 या 2 स्नैप के टेस्ट ऑलरेडी दे चुके हो, आप कॉन्फिडेंट हो, पहला वाला अच्छा चला गया है, ये वो, मतलब अभी 2nd या 3rd अटैम्प्ट जो भी देना है, भर दिया है, फॉर्म दे रहे हैं, और या तो मैं ज़्यादा फोकस जैट पे हूँ, आई गिव मोर प्रेफरेंस टू जैट दैन स्नैप, मतलब जिसका भी जो भी पर्सनल चॉइस है उसके हिसाब से यू कैन प्रैक्टिस। I would suggest give 1 or 2 snap mocks each day, analyze them. बाकी का you can give 1 ZAT mock and analyze it. This should be your timetable, like if you are confident enough about that. Then obviously if you're only giving snap, then 3 mocks a day and analysis of those, and practice questions of, I would say, each section के 10 से 15 questions आप practice करो। और देखो, क्वेश्चंस बहुत ही छोटे से होते हैं स्नैप के, तो आपको बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, तो आप जल्दी जल्दी देख के एनालाइज कर सकते हो, आई फील। तो 3 मॉक्स एंड एनालिसिस ऑफ दोस टू 3। 3 ज़्यादा लग रहे हैं तो आप 2 तो एटलीस्ट 2 ही, 4-5 दिन में 2 मॉक ईच डे, 10 मॉक्स, बहुत फ़र्क पड़ेगा, बिलीव मी, बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। दिस इज़ फॉर पीपल जिनको ज़्यादा प्रैक्टिस की ज़रूरत है। आप ऑब्वियसली सेल्फ एनालिसिस करो, आपको लगता है कि आपका हो चुका है एंड दिस इज़ इनफ, उतना ज़्यादा नहीं करना है तो इतना ज़्यादा मत करो। देन decide as per your level of preparation that you had until now. Basically your schedule should have 8 to 10 hours of study each day. Now this is very important. I mentioned this in my last video as well, I'll mention it here as well. Believe me, snap and nmat and zat are exams for which people do not practice for months. I have spoken to so many of my friends at my college and at other colleges as well, as to if you ask them how many months did they prepare for these exams, the answer is not in months, it's in days. So believe me, December is a very important month and each day matters a lot. Even like 2-3 days of practice can be your making it or breaking it point. ना यार, आपको मीडियोकर रिजल्ट्स और मीडियोकर कॉलेज मिलेगा, बट आप थोड़ा सा ये 10 दिन थोड़ी और मेहनत कर लोगे, ये 5 दिन थोड़ी और मेहनत कर लोगे, सो इट विल impact your college life, your placements, and then your future a lot. So this is very important. Say कि for example, now not naming colleges, but if you say I am in one of the top 15 B schools versus you say I'm in one of the top 30 B schools, that creates a very big impact. That creates an impact on your mind and on yourself as well. That will create an impact throughout your future life, because आपको MBA एक ही बार करना है, तो try to do it from the best college possible, right? And if people have decided that they want to give another shot and they'll do it next year, उनको CET या CAT फिर से करना है, so that is their choice. But not everybody has that much time, or not everybody is in that situation where they choose that let's do it next year. So if you are in that position, this is your chance. I have received a lot of questions and comments asking saying that
So are the three tests at the same level? Is it fair or unfair? Are the difficulty levels same? The third attempt is generally the most difficult. The first attempt is the easiest. ये वो ऐसे बहुत सारी चीज़ें होती है यार, ये सब आपके हाथ में नहीं है. So do not give a thought about it, do not overthink about it. मतलब, and honestly I feel it is very subjective. Like, that can never be in your hands. For someone the first one would be difficult and the second one would be easier, or some generally people say that first is the easiest, then second is mid-level, third is the most difficult. But ऐसा नहीं है. I'll tell you about what happened during my time, as some people have also questioned कि भाई ये चीटिंग वीटिंग करके मार्क्स तो नहीं ला रही है क्या, इसके मार्क्स में इतना डिफरेंस क्यों है, ये वो. ऐसा कुछ नहीं है भाई, आप वहाँ पे चीटिंग नहीं कर सकते हो. कैसे करोगे कुछ भी. और ऑब्वियसली लक ऑल्सो मैटर्स अ लॉट. आपने जो 3-4-5 तुक्के लगाए हैं, ये वो मैंने मेरे लास्ट वीडियो में पूरा एक्सप्लेन किया कि मैंने क्या क्या किया था. मैंने सारे क्वेश्चंस अटैम्प्ट किए थे, ऑल 60 ऑफ देम. मुझे कितने आते थे, मैंने कितने कैलकुलेटेड कैसे लगाए, मैंने कितने तुक्के लगाए, कैसे क्या किया, वो आप उस वीडियो में देख लो. What happened was, I found the second attempt which was available for everybody and the first attempt that I gave easier for me. मुझे उस टाइम सारे क्वेश्चंस हो जा रहे थे, मुझे समझ आ रहे थे, मैंने सॉल्व कर लिए थे. तो ठीक है, लक हो सकता है, मेहनत हो सकती है, प्रैक्टिस हो सकता है, जो भी हो सकता है. मुझे वही टॉपिक्स पता थे जो एग्ज़ाम में आ गए. कुछ भी हो सकता है, ठीक है, इट्स फाइन. थर्ड वाले अटैम्प्ट में ये हुआ था कि नाउ ड्यूरिंग 2023 इट हैपन दिस वे दैट जनरली जी के क्वेश्चंस नहीं आते हैं, बट आई थिंक वो सरप्राइज एलिमेंट था उस ईयर. हर ईयर कुछ ना कुछ में भी हो जाता है वो. तो 3-4 जी के क्वेश्चंस थे कि खारिफ क्रॉप्स, राबी क्रॉप्स, ये वो, और ऐसे कुछ इंडिया में हो रहा है वो. एंड मुझे कुछ पता नहीं था, तो वो वाले क्वेश्चंस मुझे ऑलरेडी डिफ़िकल्ट लग रहे थे. और मतलब ओके, यू शुडंट डू दैट. Do this disclaimer, obviously. This is what happened with me. मेरा 22 दिसंबर को, उस टाइम जो मैं सेकेंड अटैम्प्ट दे रही थी, मेरा बर्थडे था, और मैंने इसे इतना ध्यान नहीं दिया था. मतलब मेरे को पता था मेरा फर्स्ट अटैम्प्ट ही मेरा बेस्ट अटैम्प्ट गया है, और मैं उस हिसाब से प्रिपेयर थी, और मेरे को पता था इससे ज़्यादा मार्क्स तो मैं ला ही नहीं सकती. मतलब वो बेस्ट चला गया है, इससे ज़्यादा बेटर नहीं हो सकता. बट ठीक है, ऑब्वियसली आपको ऐसा नहीं सोचना चाहिए. अगर आपका पहला अटैम्प्ट ऑलरेडी हो भी चुका है, सेकेंड अटैम्प्ट उससे बेटर करने की कोशिश करो. एग्जैक्टली, लर्न फ्रॉम माई मिस्टेक्स. Not that it mattered, but yes, even 1 mark would matter if that's the making or the breaking point for you. मतलब कि यार आपका फर्स्ट अटैम्प्ट में अगर 42 आए हैं, आपकी सेकेंड अटैम्प्ट में 43.5 है, और 43 ही कट ऑफ था, तो लाइक यू नेवर नो. इसलिए आप अच्छे से करना. मैंने उतना थोड़ा सा मैंने लाइटली ले लिया था, विच आई शुड हैव डन, बट येस, दैट वाज द केस. एंड देन अगेन ऑब्वियसली इट इज़ वेरी सब्जेक्टिव. अब जिन लोगों को यार जी के आता था, ये वो जिनको होता था, उनके लिए तो केक वॉक था, उनके लिए तो फ्री मार्क्स थे ना, कि मतलब दिस इज़ बेसिक. मुझे उस टाइम क्लिक नहीं हुआ, मुझे उस टाइम पता, मतलब मैं भूल गई थी. मुझे था कि हाँ स्कूल में पढ़ाया, बट आई कुडंट रिकलेक्ट एट दैट पॉइंट. एंड a lot of thing happens during those 60 minutes. आपको क्या क्लिक हो रहा है, नहीं हो रहा है, आपका दिमाग चल रहा है, आपने एक सेट कैलकुलेट किया, फिर कैंसिल कर दिया, आपका मूड ऑफ हो गया है. मतलब बहुत कुछ होते रहता है यार, वो तो ये सब आपके हाथ में नहीं है. यू जस्ट ट्राई टू गिव योर बेस्ट. Yes, a very, very important topic, and I'm glad so many of you all asked this question in the comments, and many of you all had this concern about how to manage time. Now, I was thinking time management as schedule, but it can also be interpreted as this way, that how do you manage time during your exam, during those 60 minutes. I think it is a very intuitive टेस्ट दैट दे टेक कि भाई आपके पास बहुत ही कम टाइम है, आप इस टाइम में कैसे रिएक्ट करते हो और कैसे रिस्पॉन्ड करते हो. ये आपके पास ओवर थिंक करने का टाइम नहीं है, गलती करके फिर सुधारो, फिर ये सब करो, इसका भी इतना टाइम नहीं है. सो यू हैव टू बी लाइक, यू ट्राई टू गिव योर बेस्ट आइडियल परफेक्ट अटेम्प्ट एज पॉसिबल. नाउ इन दो 60 minutes I divided it into 3 parts. Now for Snap I had this strategy that when I was giving mocks, I was like, हर एग्ज़ाम में दिस इज़ नॉट जस्ट इवन अबाउट स्नैप, आपको टाइमर से आगे रहना है. यू हैव टू बीट द टाइमर. नाउ हाउ डू यू डू दैट? फॉर मी आई डिड इट दिस वे दैट आई डिवाइडेड दो 60 questions into 20 3 parts. The first 20 questions that I attempt,
आई विल देन चेक द टाइमर आफ्टर द 20th क्वेश्चन कि अब मेरे पास नेक्स्ट 20 करने के लिए कितना टाइम है, क्या मैं टाइमर से आगे चल रही हूँ, क्या मैं पीछे चल रही हूँ, कि मतलब आइडियली अगर 60 है 1 मिनट ईच, वो आप मैथ लगा लो, तो मैं 20 मिनट से मैं 17 पे हूँ 18 पे हूँ, कितना क्या चल रहा है, क्या है नेक्स्ट वाले के लिए कितना करना है, दैट वे. Now Snap has these 3 sections ki not sections but these are the categories that questions fall under. क्या बोल रही हूँ मैं? हाँ सॉरी वो VA से चालू होते हैं, LR देन QA आते हैं, वो 60 क्वेश्चंस. मैंने तो यार यही किया था कि कैट में भी सेम लिया था, स्नैप में भी सेम लिया था, एनमैट में भी सेम लिया था, कि मेरा दिमाग वैसे सेट था कि मैं पहले इंग्लिश RC VA ये सब करूँगी, ग्रामर वर्बल, फिर मैं LR पे जाऊँगी और फिर मैं कॉन्स पे जाऊँगी. अब देखो मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन तो था LR, तो मेरे को था कि मैं मेरा स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन मेरे वीकेस्ट सेक्शन के पहले रखूँ हर एग्ज़ाम में. मेरा वीकेस्ट था QA. तो and that I had a word with one of my IMS mentors as well. They also said that when you start with your strongest section and when you score good in that, like when you're more positive about the exam, that हाँ मैं सही कर रही हूँ, मेरे क्वेश्चन सही जा रहे हैं, तब एक पॉजिटिव अप्रोच और माइंडसेट से चालू करते हो एग्ज़ाम पेपर, तो आई थिंक हमेशा वो ज़्यादा काम करता है. इफ़ फॉर पीपल इट वर्क्स द अदर वे अराउंड कि मैं पहले मेरा डिफ़िकल्ट सेक्शन कर लूँ और फिर ईजी पे जाऊँ, मतलब आई थिंक दैट्स अ पर्सनल चॉइस, बट जनरली आई सजेस्ट दैट यू शुड प्रेफर इट दैट वे, दैट आपका स्ट्रॉन्गेस्ट सेक्शन से आप स्टार्ट करके फिर जो आपको डिफ़िकल्ट लगता है उस पर जाओ, सो दैट एटलीस्ट आप कॉन्फिडेंट तो रहोगे, आप पॉजिटिव रहोगे एग्ज़ाम को लेके. हाँ, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू सेव एटलीस्ट लाइक 1-2-3 minutes in this 60 minutes. Now how you do that? I did that through VA. I think generally ग्रामर और ये वो बहुत ईजी होता है और वो बहुत जल्दी जल्दी हो जाता है, आपको 1 मिनट लगता नहीं है पूरा वो करने के लिए. 2-3 लाइन का अगर क्वेश्चन है या 1 लाइन का क्वेश्चन है तो उसमें आपको इतना 60 सेकेंड नहीं लगेंगे सॉल्व करने के लिए. तो अगर मेरा 7-8 मिनट में वो हो जा रहा है, देन LR 25 क्वेश्चन 25 मिनट ही एंड QA 20 क्वेश्चन 20 मिनट. तो मैंने वो वहाँ जो 2 मिनट बचाए हैं ना, वो मैं एंड में मेरे जो भी मार्क्ड क्वेश्चंस है वो एनालाइज करूँगी, एक बार रिविजिट करूँगी, डिसीजन लूँगी, मार्क करूँगी, सबमिट करूँगी, ये मैं ये सब देखूँगी ना एक बार ओवरऑल पेपर, बिकॉज इसमें यू कैन रिविजिट. सो ऑलवेज यूज़ दैट अपॉर्चुनिटी कि हाँ भाई मैं कहीं से भी तो 1-2 मिनट बचाऊँ. सो दैट्स वाई यू ऑलवेज हैव टू बी लाइक अहेड ऑफ द टाइमर. या अ लॉट ऑफ पीपल हैड दिस क्वेश्चन एज वेल दैट which college can I get at these marks, which college should I aim at, what to do, am I going to get into this college, कॉल आएगा कि नहीं, ये वो. यार 2 things, अभी मतलब अगर आप ऐसे फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से सोच रहे हो कि क्या होगा आगे, मेरे को मिलेगा कि नहीं, ये वो, तो नाउ इज़ नॉट द टाइम टू थिंक अबाउट ऑल ऑफ दिस. नाउ इज़ द टाइम टू प्रिपेयर एंड टू फोकस ऑन योर स्टडीज़. अभी से ये फालतू आगे का मत सोचो कि भाई इतने मार्क पे मेरा क्या होगा, ये वो नहीं. बट आपको ये इसलिए पूछना है कि यू आर डिसाइडिंग कि कौन से कॉलेज के फॉर्म भरूँ, क्या करूँ, ये वो, देन इट इज़ अ वेरी क्रूशियल क्वेश्चन. बिकॉज फॉर एग्जाम्पल इफ़ यू हैव गॉटन X मार्क्स एंड इसमें आपको लग रहा है कि यार मैंने 1-2 अटैम्प्ट दे दिए या जो भी कर दिया है, मेरे को लग रहा है इसके अराउंड ही आएंगे या सी सिमिलर लेवल पे ही होगा, एंड आई डोंट नो कि ज़्यादा मिले नहीं मिले, एंड मेरे को अगेन आई कैन नॉट टेक द रिस्क ऑफ गिविंग एग्ज़ाम्स अनदर ईयर नेक्स्ट ईयर, एंड आई कैन नॉट वेस्ट 1 more year बिकॉज ऑफ दिस. देन आई वुड डेफिनेटली से कि दिस इज़ द अप्रोच दैट यू शुड अप्लाई. आपको जो भी कॉलेज में आपके मार्क्स देखो, आपको जो भी मार्क्स आए हैं या जो भी मॉक्स का एवरेज आ रहा है या फर्स्ट अटैम्प्ट अगर दे दिया है, सेकेंड अटैम्प्ट दे दिया है, तो उसके मार्क्स देखो. कॉलेजेस, स्नैप कॉलेजेस की लिस्ट निकालो, टॉप 5-6 प्रेफरेबली देखो, अनलेस एंड अनटिल आपको एकदम स्पेशलाइजेशन स्पेसिफिक कॉलेज में जाना है. ओवरऑल में आप मतलब थोड़े टॉप वाले देखो, उनके लास्ट 3 years में क्या कट ऑफ थे, तो 22, 3 और 4 में किस कॉलेज के क्या थे. SIBM और SCMHRD के लिए 45 ही स्कोर है, मतलब यार 45 इज़ अ वेरी सेफ जोन, 45 एंड अबव, तो वो आ गया है तो आपको थोड़ा स्ट्रेस लेने की ज़रूरत नहीं, आपको कॉल तो आ जाएगा, ठीक है.
दूसरे कॉलेजेस का आप वो देख लो, तो अगर आपके उसके आसपास आ रहे हैं, इफ़ यू स्टिल स्केप्टिकल अबाउट इफ़ आई शुड फिल द फॉर्म और नॉट, आई वुड से फिल दोज फॉर्म्स फॉर कॉलेजेस. ऑलवेज कीप योर ऑप्शंस ओपन. जितने ऑप्शंस ओपन हो सके उतने रखो, बिकॉज यू शुड नेवर रिग्रेट कि यार फॉर्म नहीं भर देती तो भी 1 साल और वेस्ट नहीं करना होता, या 1 साल और मेरा बर्बाद नहीं होता. तो वो 1000 रुपये के लिए मत सोचो. ट्रस्ट मी, इट विल बी वर्थ इट. मतलब डोंट थिंक अबाउट द फॉर्म फीस और ये वो कि मैं फालतू में क्यों भरूँ ये वो. यार हमेशा इन सब चीज़ों में रिस्क एपेटाइट अपनी ज़ीरो रखो कि मैं फॉर्म भरने में कंजूसी नहीं करने वाला हूँ या करूँगी. इफ़ यू वॉन्ट टू गिव अनदर अटेम्प्ट एंड इफ़ यू हैव इनफ टाइम एंड if you have that profile and if you feel that no, I'm not going to go to this college, मेरे को इसी कॉलेज में जाना है, तो then fair enough, वैसा रखो. Obviously always aim higher, try to get into the best college. आप MBA एक ही बार करने वाले हो लाइफ में, make sure आप बहुत ही अच्छे कॉलेज से करो. But not everybody has that ideal situation. There are many different profiles, people at different ages with different situations. So at some times and in some situations it is ideal that you go for at least doing MBA rather than doing nothing. So yes, you have to analyze that for yourself. Last part and the most important one, मुझे इतने सारे लोगों ने बोला है कि दीदी कॉर्न्स कहाँ से पढूँ. एक तो ये दीदी मत बोलो यार, बट ठीक है, कॉर्न्स कहाँ से पढूँ और VA वीक है या इंग्लिश वीक है, ये कैसे करूँ, क्या करूँ, सेक्शनल कट ऑफ कैसे करूँ, मेरा सिर्फ एक ही सेक्शन स्ट्रॉन्ग है वो. So, I agree, Snap does not have sectional cutoffs and आपको एक सेक्शन में अच्छा हो के उससे मार्क्स ड्राइव करने का मौका मिलेगा, ऐसा अगर आप सोच रहे हो तो आप गलत हो. क्योंकि सिर्फ 60 क्वेश्चन ही है और 60 मार्क्स ही है, उसमें 15, 25 और 20 का अगर ब्रेक ऑफ है, तो आप मेरे को बताओ यार, अगर आप क्वांट्स में वीक हो, सपोज आप बोल रहे हो, और आप उसमें 10 मार्क लाओगे, फिर अगर आप LR और VA में देखो, फुल तो बहुत ही आइडियल होता है, ऐसा नहीं आते हैं, तो उसमें भी आपका 2-3 मार्क कट गए, 2-3 मार्क कट गए. अब आपके 15 या 20 मार्क ऐसे ही कट जाएंगे, तो कैसे होगा फिर? यू विल नॉट गेट इनटू अ वेरी गुड कॉलेज. तो ऐसा नहीं हो सकता है कि आपके 1 या 2 सेक्शन से पूरा स्कोर ड्राइव कर लो और एक में बहुत ही कम आए तो भी चलेगा. इसमें आपको थोड़ा बैलेंस अप्रोच तो रखना ही पड़ेगा. तो आपको सारे सेक्शंस में अच्छा होना ही पड़ेगा, कि हमेशा एम्बिग्यूटी होती है. ऐसा नहीं होता है कि यार आपको 25 on 25 मिल गया, आपको 15 on 15 मिल गया, आपको 20 on 20 मिल गए कोई भी सेक्शन में. ये नहीं ही होने वाला है. हर एक में आपका 2-3 मार्क कट गए, 3-4 मार्क कट गए, 5-6 मार्क कट गए, ये होता ही है. थोड़े बहुत मार्क्स तो कटते ही हैं, क्योंकि यार वो पेपर ऐसा होता ही नहीं कि आप 60 on 60 ला लो. नाउ इफ़ यू आर वीक इन एनी सेक्शन, देन give that section the most time of your preparation. उसका प्रैक्टिस करो ही सबसे ज़्यादा, क्योंकि आपको उसमें भी अच्छा होना है. आप जो 2 सेक्शंस में या एक सेक्शन में अच्छे हो वो तो है ही, आप उसको प्रैक्टिस करो ही, बट जिसमें आप वीक हो वो और ज़्यादा करो. आपको VA नहीं आता है, वो 15 मार्क का ही है, तो मैं उसमें 7-8 मार्क ला लूँगा, 5-6 मार्क भी ला लूँगा तो भी जाए. ऐसा मत सोचो. आपके पास जो भी टाइम है वो डालो, प्रिपरेशन में डालो. रिसोर्सेज, एज आई मैंशनड अगैन, आई एम नॉट गोना टीच यू कि भाई ऐसे ऐसे पढ़ते हैं, ये होता है, वो नहीं. उसके लिए बहुत सारे वीडियोस हैं, बहुत सारे कोचिंग इंस्टीट्यूट्स हैं. मैं आपको सब कुछ नाम बता देती हूँ. देर इज़ iConta, देर इज़ MBA करो, देर इज़ CATKing, देर आर IMS वीडियोज़, देर इज़ टाइम, देर इज़ C2C mentors विच इज़ CAT to CET mentors. ये सब लोग वीडियोस बनाते हैं, इनके एग्ज़ाम्स है, इनके सीरीज़ अवेलेबल है, इनके बुक्स हैं, इनके क्वेश्चंस अवेलेबल हैं, प्रेप प्लस स्ट्रैटेजी ओवरऑल वीडियोस भी है, सब कुछ है. तो यार नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, कि आपको ये ख़रीदना है, फ्री वाले यूज़ करने हैं, किसका ख़रीदना है, क्या करना है. मेरा बता देती हूँ. मैंने IMS, ऑलरेडी मैं IMS की स्टूडेंट थी, तो मैंने उसका ही किया हुआ था प्रेपरेशंस, और उस पर जो भी अवेलेबल थे मैंने वो यूज़ किया था. दैट वाज माय पेड रिसोर्स. नाउ माय फ्री रिसोर्स वाज MBA करो. मैंने उनके बहुत सारे वीडियोस देखे थे फॉर स्नैप एंड अदर्स. मैंने और 5-6 फ्री टेस्ट जो भी अवेलेबल थे अलग अलग वेबसाइट्स
और इंस्टीट्यूट्स के वो दे दिए थे. नाउ इफ़ यू आर थिंकिंग कि यार मैं इसमें ये 1.5 to 3K के बीच में, आई थिंक जनरली सबकी रेंज होती है, तो ये मनी शुड आई इन्वेस्ट इट इन दीज रिसोर्सेज और नॉट. आई थिंक and I would suggest that the answer should always be a yes. Yes, because I will tell you, these 2 to 3,000 rupees will not matter when you get into a very good big school. अगर ये आप टेस्ट नहीं ले रहे हो एंड इसकी वजह से आप नहीं पढ़ रहे हो, या ये एग्ज़ाम्स नहीं ले रहे हो, प्रैक्टिस क्वेश्चंस नहीं ले रहे हो, ये वो, और इसकी वजह से आपको सपोज बेस्ट कॉलेज मिल रहा है और अभी आप 5th बेस्ट पे, तो दैट विल बी अ वेरी बिग इम्पैक्ट ऑन योर लाइफ. मतलब अभी आप मेरे को बताओ कि अगर आप टेस्ट नहीं ले रहे हो सपोज, और यार इट शुड नॉट मैटर कि मेरे पास 5 दिन बचे हैं, मैं उसके लिए 2,000 रुपये क्यों खर्चा करूँ. नहीं, ये 2,000 रुपये उस 5-6 दिनों के लिए नहीं है, या वो टेस्ट के लिए नहीं है. ये 2,000 रुपये वो अच्छे बी स्कूल के लिए हैं जो आपको मिल जाएंगे अगर आपको 3-4 मार्क एक्स्ट्रा आ गए. तो आप वैसे सोचो. अगर आपको लग रहा है कि हाँ मेरी प्रैक्टिस हो गई है, ठीक है, ये वो मेरे को फालतू नहीं करना है, एंड आई हैव डन इनफ एंड आई एम कॉन्फिडेंट अबाउट इट, देन इट्स फाइन, यूज़ द फ्री रिसोर्सेज. बट इफ़ यू हैव लाइक इवन 1% डाउट कि यार शायद ले लूँ, तो ले लो ऑलवेज. दैट वाज ऑल अबाउट इट फॉर दिस वीडियो. कमेंट्स में क्वेश्चंस डाल दो कि आपको नेक्स्ट वीडियो में क्या चाहिए, आपको और क्या एक्सपीरियंसेस के बारे में बताऊँ, कैसे क्या अप्रोच करूँ, एवरीथिंग. ओके, बाय बाय.